बाइसेक्टर के वर्टेक्स भी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं और वो क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक ही होता है। रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स? द quadrilaterals PQRS formed by an angle bisector of a cyclic quadrilateral is also cyclic. देखो suppose this is a cyclic quadrilateral ABCD. अगर ये ए का एंगल बाइसेक्टर है AP, बी का एंगल बाइसेक्टर है BQ, ये सी का एंगल बाइसेक्टर है, डी का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है फॉर एग्जांपल, और एक मैं यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स। ए बी सी डी, ये ए का एंगल बाइसेक्टर है, ये बी का एंगल बाइसेक्टर है, ये सी का एंगल बाइसेक्टर है, ये डी का एंगल बाइसेक्टर है, ये है पी, ए का एंगल एपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। ये क्यू आर एस, ये एंगल बाइसेक्टर फॉर्म्स, ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक ही होता है। ये क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक ही होता है। The quadrilateral PQRS formed by the quadrilateral PQRS formed by angle bisectors of a quadrilateral angle bisectors of a quadrilateral is also cyclic. This angle quadrilateral PQRS formed by angle bisectors of this quadrilateral ABCD, and that quadrilateral PQRS is also cyclic. Next,
cyclic quadrilateral का fourth theorem. If two sides of a cyclic quadrilateral are parallel, if two sides of a cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral are parallel, then the remaining two sides are equal. Then the remaining two sides are equal and the diagonals are also equal. And the diagonals are also equal. Suppose here A, B, C, D is a cyclic quadrilateral. AC, BD, AB is parallel to CD. AC is parallel to AB and BCD opposite side और parallel है तो उसके diagonals equal होते हैं. AC equals to BD यस प्रणव हम ये जो थ्योरम टचिंग द सर्कल दैट इज टेंजेंट के थ्योरम हम कल के लेक्चर में लेने वाले हैं. AC is equals to BD and AD equals to BC. Mandar. AD means two remaining sides are equal. AB, CD ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को तो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और रिमेनिंग टू साइड्स आर आल्सो इक्वल. Or we can write it as a cyclic trapezium is isosceles and its diagonals are equal. इसको A भी कहते हैं. A cyclic trapezium is isosceles and its diagonals are equal. And its diagonals are equal. Converse, if two non-parallel sides of a trapezium are equal, if two non-parallel sides of a trapezium are equal, then it is cyclic. Converse है, if two non-parallel sides of a trapezium are equal, then
The trapezium is cyclic. इसको we also call it as an isosceles trapezium is always cyclic. In isosceles trapezium is always cyclic. An isosceles trapezium is always cyclic. Theorem 5. The bisectors of the angle formed by producing opposite sides of a cyclic quadrilateral intersect at right angle. The bisectors of the angles formed by producing the opposite sides of a cyclic quadrilateral provided that they are not parallel Wait, participants.
Wait participants. Take the screenshot who joined late. Yes. Now, student, the last lecture, the last This is first page. This is the first page of our today's session. Take the screenshot if you not have. Take the screenshot of this first page. Now take the screenshot of this second page. I think you already taken some of them. This is the second page. Now take the screenshot of third page. And it will be continued.
ये फिफ्थ रिजल्ट समझ लीजिए स्टूडेंट्स, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी और डी। अगर ये आप ए बी को यहां पे एक्सटेंड करते हैं और सी डी को भी एक्सटेंड करते हैं, उसी तरह से एडी को एक्सटेंड करते हैं इधर और बीसी को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के बाद सपोज ए बी और सी डी मीट एट पॉइंट ई, AD एंड BC मीट पॉइंट F। ए का जो एंगल बाइसेक्टर है और F का जो एंगल बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये जो एंगल है, ये एंगल ये है राइट एंगल। ये दिस इज द फिफ्थ थ्योरम। ये कहता है अगर हम ये दोनों साइड को ए बी और सी डी को इधर एक्सटेंड करते तो इट मीट पॉइंट ई, एडी और बीसी एक्सटेंड करते इट मीट पॉइंट एफ। तो ई का एंगल बाइसेक्टर और एफ का एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट। दिस इज द थ्योरम नंबर 5। मैं बहुत खुश हूं कि आप अच्छी तरह से ये फंडामेंटल एंड बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसके जल्द ही आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। तो आस्था डिफेंस एकेडमी के जो स्टूडेंट है उनका जो बेसिक फंडामेंटल्स हम साल में 2 बार लेते हैं, एक एट द स्टार्टिंग ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड एट द एंड ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड स्टार्टिंग ऑफ 12th स्टैंडर्ड। तो मैथमेटिक्स में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्टूडेंट आप खुद को इतना मैथमेटिक्स में बेहतर बनाओ कि कोई भी रिजल्ट यूज करके आपको आगे भी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए यूजफुल होता है। मैं ये जो बाकी स्टूडेंट है उनसे भी अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन फीस पे करिए, तो प्रिंटेड नोट्स भी आपको दी जाएंगे। आस्था डिफेंस एकेडमी अपने जो वादा करती है, अपने इथिक्स और अपने जो कमिटमेंट है हमेशा पूरी करती। हमने आपको ये वादा किया था कि एसपीआई का क्रैश कोर्स 15 दिन चलेगा, लेकिन वही फीस में हमने वो क्रैश कोर्स मोर देन 1 मंथ कवर किया। उसमें से और बहुत कुछ हमारे प्लानिंग्स है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक अनुरोध करता हूं, आपको अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जिनका
जिनका रजिस्ट्रेशन का पेमेंट बाकी है, पार्ट पेमेंट किए हैं, वो जल्द से जल्द पेमेंट करवाइए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। जल्द ही हम मिलने वाले हैं। 15 जून के बाद 1 जुलाई से एकेडमी स्टार्ट होगी। तब तक के लिए हम ये फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। नाउ वी स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू। कल हम टेंजेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अ लाइन टचेस द सर्कल इन अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एज टेंजेंट ऑफ सर्कल। उसके रिजल्ट्स हम टुमारो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। Try to join at 11:45. There will be the science lecture. Try to join at 11:45. There will be the physics lecture. There will be the physics